तो दोस्तों अभी तक सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती है वो देखा। अब आज के सेशन में आज के वीडियो सेशन में हम देखने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। हमने देखा था कि भाई इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू लैंग्वेजेस एंड फ्यू ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेज और उसके ऊपर से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है वो हमने देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसका ऑटोमेटा कैसे बनाना है। तो वी आर गोइंग टू लर्न फाइनाइट ऑटोमेटा। अब दोस्तों ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज सिमिलर टू द स्टेट डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यू मस्ट हैव हर्ड, राइट? यू मस्ट हैव सीन इट कि जिसमें कुछ स्टेट्स होते हैं एंड कुछ ट्रांजिशंस होते हैं. सो इफ सम इवेंट हैपन्स you go from one state to another state, right? Let's say for example, currently you are in hungry state. Currently you are in hungry state. You are taking your lunch, right? So this event happens. The event lunch happens. So your state from hungry will become now, let's say, drowsy. तो पहले आप hungry state में थे. You take your lunch, then you reached in the drowsy state. सो दिस इज अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कि जिसमें कुछ स्टेट होते हैं और कुछ इवेंट होती है तो उसके ऊपर से हम ट्रांजिशंस करते हैं. सो दिस इज सिमिलर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा भी सिमिलर है. यहां पर कुछ स्टेट्स होंगे और कुछ ट्रांजिशंस होंगे. अब दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा जो है दैट कम्स इन टू वेराइटीज. वन इज डिटर्मिनिस्टिक and the other one is non-deterministic. So finite automata has two main variations or variants. One is deterministic finite automata and the second is, it is in short, it is called DFA, and this one is in short, it is called NFA, right? Other one is non-deterministic. So first of all, let us try to understand that what is the difference between DFA and NFA. तो दोस्तों in case of DFA, compulsorily there must be exactly one transition for a particular symbol, right? So let's say I am in state Q0. This is another state Q1 and this is another state Q2. So in DFA, you will have transitions like this, right? So what this transition says, so this is for DFA, that if currently I am in Q0 state and if symbol A appears, I will reach in Q1 state. Currently if I am in Q0 state and if symbol B appears, I will reach in Q2 state. So this is DFA, this is deterministic. If I ask you a question कि अभी मैं Q0 state में हूं और input symbol A आ रहा है तो मैं कौन से state पे जाऊंगा, you all will answer with certainty that हम Q1 state पे जाएंगे, right? लेकिन in case of NFA, this certainty is absent, right? So in case of NFA, or the certainty may not be there. You may come across such things कि भाई एक ही स्टेट में से एक ही सिंबल के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन आपके पास हो, ऐसा पॉसिबल है एनएफए में. सो इफ दिस इज माय डायग्राम, and in this diagram if I ask you a question that currently you are in state Q0 and if symbol A appears, in which state you will go? So you are not sure. You may go in state Q1 or else you may go in state Q2, right? So that is why this is non-determinism. This is nothing but non-determinism, whereas yahan par determinism hai, right? There is no confusion here in case of DFA, whereas in case of NFA, yes, of course there is a confusion. I may go in state Q1 or else I may go in state Q2. So this is the fundamental difference between DFA and NFA. Once we learn few examples, you will better understand this difference. Today we are going to start the definition of DFA, how DFA can be defined, right? So we are starting with DFA. We can define DFA using 5 tuples.
and those 5 tuples are q, sigma, q0, a, and delta. These are the 5 tuples by which we can define any DFA, right? Where q is the finite set of states, sigma is the set of input symbols, or else you may call it an alphabet, right? Then q0 is the initial state. This q0 belongs to capital Q. तो यहां पर कैपिटल Q इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. यहां पर कुछ स्टेट होंगे, उनमें से कोई एक स्टेट इनिशियल स्टेट कहा जाएगा जिसे हम बोलते हैं Q0, राइट? देन कैपिटल A इज द सेट ऑफ accepting states. Right? We call these accepting states as final states also. So A is the set of accepting states, or you call it A is the set of final states. And the last one is the delta, which is a transition function. So basically this function defines the transitions which take place. This transition, like मैं यहाँ पर हूँ और ये symbol आता है, then I will reach here, right? So this transition is defined by a function which is nothing but delta, and that function is nothing but delta is from Q cross sigma to Q, right? You must have learned functions in set theory or something in your school also, right? F is from A to B. So this is nothing but a function where f is the name of the function, A is the domain from where you will take your inputs, then you will apply the function f to your inputs, and then you will get answer in B. So this is this is domain and this is codomain, right? The same is here. You will take values from Q cross sigma and you will get answer in Q. Now we are going to understand each and every tuple in detail with example. तो पहले एक example लेते हैं finite automata का, DFA का. Then I will come back to this definition and I will explain each and every tuple once again with example, right? तो आए दोस्तों, पहले हम बनाते हैं एक finite automata. Suppose my language L is, let's say my sigma is 0, 1, and my language L is strings ending in 0, 1. This is my language, strings ending in 0, 1. अब दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाना है, डीएफए कैसे बनाना है, और कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज. इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी 0 + 1 स्टार डॉट 0, 1, राइट? मतलब हमें ये 0, 1 एंड में चाहिए, ठीक है? अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे बनाना है. मैं कैसे बनाऊंगा? आई विल स्टार्ट लाइक दिस. दोस्तों यहां पर जो चीजें कंपलसरी है पहले मैं वो ड्रॉ करूंगा, राइट? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट. दोस्तों स्टार्टिंग स्टेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, राइट? अ सर्कल प्रिसीडेड बाय एन एरो, राइट? सो दिस इज माय स्टार्टिंग स्टेट. यहां से अगर 0 आता है तो मैं कुछ इस वाले स्टेट पे पहुंचता हूं, ठीक है? और फिर 1 आता है तो मैं ये वाले स्टेट पे पहुंचता हूं. अब दोस्तों यहां पर दो चीजें हैं. सी, हम नॉर्मल कोई भी स्टेट है, कोई भी नॉर्मल स्टेट है, उसे हम एक सर्कल से डिफाइन करते हैं. इनिशियल स्टेट जो है, राइट, द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड लाइक दिस एरो विथ अ सर्कल. एंड एक्सेप्टिंग स्टेट्स जो है, जो हमने यहां पर बोला दैट A is the set of accepting states,
and here I must say A is subset of Q. मतलब यहां पर हमारे कुछ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, उसमें से कुछ स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे, राइट? एंड वी डिनोट एक्सेप्टिंग स्टेट्स बाय टू सर्कल्स, राइट? सो टू सर्कल्स आर यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग स्टेट एंड द ट्रांजिशंस आर डिनोटेड बाय एन एरो, और उसके ऊपर यहां पर मैं लेबल लगाऊंगा एंड दैट लेबल विल बी द सिंबल ऑफ माय सिग्मा, राइट? सो एनी सिंबल ऑफ सिग्मा, यहां पर वो लेवल होगा, ठीक है? तो ये चीजें मैंने ड्रॉ की। अब यहां पर आप समझिए हम एक्सेप्टिंग स्टेट कब ड्रॉ करेंगे दोस्तों? एक्सेप्टिंग स्टेट हम तब ड्रॉ करेंगे अगर मेरी स्ट्रिंग, इफ माई स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज, वहां पर मैं एक्सेप्टिंग स्टेट बनाऊंगा, राइट? तो यहां पर ये 0 और 1 आता है, मान लो सिर्फ 0 और 1 आता है, तो ये 0 और 1, राइट? सो आई मस्ट ड्रॉ एक्सेप्टिंग स्टेट हियर, ठीक है? अब दोस्तों मेन दो रूल है आपको जो ध्यान में रखना है। योर DFA विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट DFA इफ every string in the language are ending in accepting state and every string which are not in the language are not ending in accepting state. मतलब जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, और जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड नहीं होनी चाहिए। मतलब वो सारी स्ट्रिंग यहां पर भी एंड हो सकती है, यहां पर भी एंड हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टिंग स्टेट में वो एंड नहीं होनी चाहिए। If both of these rules are getting satisfied, we can say that this is the correct DFA for the given language. ठीक है? तो ये दो रूल को आपको दिमाग में फिट कर देना है। अब तीसरा रूल है, तीसरा रूल, इन DFA there must emit exactly one transition for each and every symbol of your sigma. मैं तीनों रूल यहां पर लिख रहा हूं, डोंट वरी। सो लेट मी राइट दिस फर्स्ट रूल। इन DFA there must be exactly one transition for every symbol of sigma from every state. मतलब DFA में हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर ये मैंने कुछ, आई हैव ड्रॉन सम पोर्शन ऑफ DFA। यहां पर मैं स्टेट्स को नाम दे देता हूं, इसको मैं बोलता हूं Q0, इसको बोलता हूं Q1 और इसको मैं बोलता हूं Q2। अब दोस्तों आप देखिए कि यहां पर Q0 में से मैंने 0 के लिए ट्रांजिशन निकाल दिया। अब मुझे Q0 में से 1 के लिए ट्रांजिशन निकालना है, राइट? अब मुझे Q0 में से 1 के लिए ट्रांजिशन निकालना है, तो वो ट्रांजिशन मैं कहां डालूंगा? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक तो है कि भाई मान लो मैं उस 1 ट्रांजिशन को यहां पर सेल्फ लूप में ले लूं, या तो फिर मैं उसे यहां पर ले लूं, या तो फिर मैं उसे सीधा Q2 में ले लूं। अब दोस्तों हम ये तीनों जो पॉसिबिलिटीज है उसको एक एक करके देखते हैं कि भाई मान लो मैंने Q0 में से ये 1 वाला ट्रांजिशन सीधा Q2 में डाला होता तो क्या होता? सीधा ये यहां पर मैंने अगर Q2 में डाला होता तो मेरी स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग देता हूं 1, राइट, स्ट्रिंग 1 एक्सेप्ट हो जाती। अब देखिए स्ट्रिंग 1 के लिए मैं Q0 में से शुरू कर रहा हूं और स्ट्रिंग 1 आई तो मैं सीधा पहुंचा Q2 पे, और यहां पर मैं एंड हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अब आप मुझे बताइए, whether string 1 belong to your language? String 1 does not belong to my language, because my language, the strings in my language must end with 0 and 1. This is ending with 1 only, आगे 0 नहीं आ रहा है। String 1 is not in the language, so it must not be accepted.
so it must not end in accepting state. But by this transition, it is ending in accepting state. So what? This transition is wrong. Right? We can't draw this transition. अगर हम draw करते हैं तो ये हमारा DFA गलत हो जाएगा. Right? तो मैं ये पूरी चीज erase कर देता हूं. Now another possibility is this one. मैं मान लो Q0 में से सीधा Q1 पे ये ट्रांजिशन ड्रॉ करता हूं, ये 1 वाला. तो आप देखिए whether this is also correct or not. The answer is this is also not correct, because अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तो मेरी स्ट्रिंग 1 अगर मेरी स्ट्रिंग 1 आती है तो मैं इनिशियल स्टेट में से 1 से Q1 पे पहुंचा और Q1 पे से दूसरा 1 आया तो मैं Q2 पे पहुंचा. सो स्ट्रिंग 1 एक्सेप्ट हो जाती है. 1 is ending in accepting state, मतलब वो एक्सेप्ट होती है. एंड स्ट्रिंग 1 डज नॉट बिलोंग टू माई लैंग्वेज. तो ये ट्रांजिशन भी गलत है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this also must not be drawn. Now what if I draw transition like this? Q0 में से चाहे कितने भी 1 आए, I must be in Q0. मतलब चाहे कितने भी 1 आ जाए, 1 1 1 1 1 1 1 1, I will be in Q0. और जैसे ही 0 1 आता है, I will reach in Q2. तो इस 1 1 1 के पीछे मान लो 0 1 में डालता हूं. अगर मेरी ये स्ट्रिंग आती है इनपुट में, तो आप देखिए Q0 में से 1 Q0, वापस 1 Q0, वापस 1 Q0, फिर 0 आता है तो मैं पहुंचता हूं Q1 पे, और फिर 1 आता है तो मैं पहुंचता हूं Q2 पे. Yes, this string is accepted, and yes, this is a valid string of my language. It is ending in 0 1. Right? So this transition is correct. मतलब मैं Q0 में से चाहे कितने भी 1 आता है, I will be in Q0 only. ठीक है. अब हम बात करते हैं Q1 की. अब दोस्तों एक थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से देखिए कि स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0 1, मतलब 0 के बाद तुरंत अगर 1 आता है, 0 के बाद तुरंत 1 आता है, देन वी मस्ट गो टू एक्सेप्टिंग स्टेट. ठीक है. अब Q1 में से 1 निकल गया है, Q1 में से मुझे 0 निकालना है. अब Q1 में से मैं 0 को यहां पर अगर ड्रॉ करता हूं, Q1 में से मैं 0 मान लो यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो रॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. मान लो मेरी स्ट्रिंग है 0 0. If my input string is 0 0, then by this DFA that 0 0 will end in accepting state. So it is accepted, but this is not a valid string of my language. तो ये ट्रांजिशन गलत होगा. अब मान लो उसे मैं Q0 पे डालता हूं कि भाई ये यहां पर Q1 में से 0 आए तो मैं Q0 पे जाता हूं. Then also it will be wrong, क्योंकि अगर मेरी स्ट्रिंग 0 0 1 है, अगर मेरी स्ट्रिंग 0 0 1 है, तो आप देखिए हम कहां पर एंड होते हैं. Q0 में से मैं शुरू कर रहा हूं, पहला 0 आया मैं Q1 पे पहुंचा, दूसरा 0 आया मैं Q0 पे पहुंचा, और फिर 1 आया मैं Q0 पे एंड हुआ. अब आप देखिए कि ये वाली स्ट्रिंग के लिए हम Q0 में एंड हुए और Q0 एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, मतलब मेरी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई, जबकि ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज के अंदर है. 0 0 1 is a valid string, so it must be accepted. But if I draw it like this, ये ट्रांजिशन में ड्रॉ करता हूं तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती है. So I must not draw. तो मैं क्या करूं? आप समझिए लॉजिक कुछ ऐसा है कि भाई 0 के बाद तुरंत 1 आए तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचे, उस तरह से उस ट्रांजिशन को ड्रॉ कीजिए. तो मैं Q1 में से अगर 0 आता है तो मैं उसे सेल्फ लूप में डाल दूं कि चाहे कितने 1 आता है, चाहे कितने 1 आते हैं, 1 1 1 1 1 1, then if 0 0 0 0 0 0 0 0 0, any number of 0 comes, and then if 1 comes, will reach in accepting state. Are you getting my point? ठीक है. अब Q0 और Q1 दोनों में से 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन निकल गया. अब मुझे निकालना है Q2 में से. See, Q2 is also one of the state. तो Q2 में से 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन कहां पर जाएगा? ठीक है. तो Q2 में हम पहुंचते हैं कुछ, मान लो मैं कोई एक स्ट्रिंग ले लेता हूं कि भाई मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है 1 0 0 1, ये वाली स्ट्रिंग है 1 0 0 1 से हम Q2 में पहुंच गए. अब कोई एक स्ट्रिंग आती है कि मान लो इसमें पीछे 0 है,
मैं Q2 में पहुंच गया हूं और 0 आता है, तो मुझे उस 0 को कहां पर डालना पड़ेगा? कैन आई डू अ सेल्फ लूप? अगर मैं यहां पर सेल्फ लूप करता हूं तो ये वाली गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सो आई कांट हैव, आई मस्ट नॉट हैव सेल्फ लूप। मुझे Q2 में से 0 ऐसे स्टेट पे डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत 1 आए तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके बाद तुरंत 1 आए तो एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। तो Q2 में से मैं 0 Q1 पे डालूंगा, ठीक है। और अगर मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है 1001 से मैं Q2 में पहुंच गया हूं, अब मान लो 1 आता है तो मुझे उसे ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत 0 1 आए तो वो एक्सेप्टिंग में पहुंच जाए, राइट। तो Q2 में से अगर 1 आता है तो मैं उसे यहां पर डाल दूंगा। वापिस Q2 में से 1 आता है तो हम Q0 में पहुंचेंगे, फिर वापस जितनी भी चीजें आती हैं हमारे DFA के अकॉर्डिंग हम उसे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों अगर हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल गया है, सो देन यस विल एंड हियर, दिस इज माय DFA। अब दोस्तों if this DFA is correct, then this DFA will accept each and every string of my language and it will reject each and every string which is not in my language. For example, मान लो मैं string लेता हूं 001101। If this is my string, let us see how it is accepted. तो मैं Q0 में से शुरू करता हूं, 0 आया Q1 पे, वापिस 0 आया Q1 पे, फिर 1 आया Q2 पे, फिर 1 आया Q0 पे, फिर 0 आया Q1 पे, फिर 1 आया Q2 पे। और अगर इसमें पीछे मैं और एक 0 ऐड कर दूं, नाउ दिस इज नॉट एंडिंग विद 0 1, तो Q2 में से फिर वापस 0 आया तो Q1 पे, दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट। सो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। सो दिस इज माय DFA, ठीक है। तो ये 3 रूल आपको याद रखने। एक तो ये वाला रूल, इन DFA देयर मस्ट बी एक्जैक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर एवरी सिंबल ऑफ सिग्मा फ्रॉम एवरी स्टेट। दूसरे 2 रूल जो है, what is the correct DFA, right? दो बाकी के जो 2 रूल है, it defines what is the correct DFA, right? So every string of language L must be accepted by DFA. Every string of language L must be accepted by DFA. इसका मीनिंग क्या हुआ? Every string of language L must end in accepting state, right? और तीसरा रूल, every string which is not in L must be rejected by DFA. And must be rejected by DFA का मीनिंग क्या हुआ? All those strings must end in non-accepting state. Accepting state कौन सा होता है कि जिसमें 2 सर्कल हम बनाते हैं? Non-accepting state। उसके अलावा बाकी जितने स्टेट है वो non-accepting state होंगे, ठीक है। So if both of these rules are getting satisfied, then we can say that DFA is correct DFA for language L, ठीक है। चलो अब दोस्तों ये जो DFA मैंने बनाया, अब इस DFA को हम हमारी जो डेफिनेशन है जिसमें ये जो मैंने सारे टपल्स लिखे हुए उसके साथ समझते हैं, ठीक है। तो पहला टपल कौन सा है? Q, कैपिटल Q, विच इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों अगर हम ये वाले DFA के बारे में बात करें तो लेट मी राइट इट हियर। सो व्हाट विल बी माय कैपिटल Q? माय कैपिटल Q इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो ये वाले DFA में कितने स्टेट हैं? Q0, Q1 and Q2. So my capital Q will be nothing but Q0, Q1, Q2. So it is set of states. Simple. Next definition में दूसरी टर्म कौन सी थी? सिग्मा. It is set of input symbols और alphabet. So sigma तो हमें दिया गया है, that is 0 1. So it is very simple.
sigma is nothing but 0 1. Next, Q0. Q0 is the initial state which is Q0 belongs to Q. ठीक है, तो हमारा जो DF है इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा है, वो Q0 ही है. हम अगर इसका नाम ABC देते तो हमारा इनिशियल स्टेट बनता A, सिंपल. ठीक है, यहां पर हमने Q0, Q1, Q2 यही नाम दिए हैं. सो माय Q0 is nothing but Q0 only. राइट. नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल A, which is nothing but the set of accepting states and A is subset of Q. ठीक है, तो मैं आता हूं कैपिटल A पे. हमारा जो DFA है उसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन से है, ओनली Q2 इज द एक्सेप्टिंग स्टेट. तो ये बन गया मेरा Q2 which is accepting state. And the last one was delta, which is a transition function which is from Q cross sigma to Q. अब दोस्तों ये जो Q cross sigma है, see this Q is a set, this sigma is also a set, and this cross is nothing but the Cartesian product or cross product between these two sets, right? And you must have learned this Cartesian product in set theory, right? So I must write it in this way. Q is nothing but Q0, comma Q1, comma Q2. Cross sigma is nothing but 0, comma 1 to Q, that is Q0, comma Q1, comma Q2. अब दोस्तों अगर इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या होगी, Q0 0, Q0 1. ठीक है, फिर Q0, Q1 0, Q1 1, Q2 0, Q2 1. समझ रहे हो? So those will be my Cartesian products. So let me write it here. Q0, comma 0, Q0, comma 1. फिर दूसरी क्या बनेगी, Q1, comma 0, Q1, comma 1. फिर Q2, comma 0, Q2, comma 1 to Q0, Q1, Q2. ठीक है. सो व्हाट दिस सेज कि हम ये जो पूरा सेट है यहां से हम वैल्यूज लेंगे, उसके ऊपर डेल्टा फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड आवर आंसर विल बी आइदर Q0 और Q1 और Q2. ठीक है, तो ये जो डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है इसको अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, सो आई मे पुट इट इन दिस वे. तो यहां पर है मेरा स्टेट Q0, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2. लेट मी गिव अ कॉमन नेम Q टू देम. यहां पर मैं डिफाइन करता हूं डेल्टा ऑफ Q, 0 और यहां पर मैं डिफाइन करता हूं डेल्टा ऑफ Q, 1. ठीक है, तो दोस्तों आप देखें ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल, दिस सेल इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ Q0, 0. Right? And what is the meaning of delta of Q0, 0? If we are in state Q0 and if this symbol 0 appears, what will be our transition or where we will reach, right? तो Q0 में से अगर 0 आता है, you just have a look at the DFA. Q0 में से 0 आता है तो हम कहां पर पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं Q1 पे. तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, my answer will be Q1. ठीक है. Now this cell is nothing but delta of Q0, 1. So what it says, Q0 में से 1 आता है तो हम कहां पर पहुंचते हैं, तो Q0 में से अगर 1 आता है we will be there in Q0 only. तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, Q0. फिर Q1 में से 0 आता है, हम कहां पर पहुंचते हैं, Q1 में से 0 आता है तो हम Q1 पे ही रहते हैं. So that is Q1 only. और Q1 में से 1 आता है, तो Q1 में से 1 आता है तो हम पहुंचते हैं Q2 पे. तो यहां पर मैं लिखूंगा Q2. फिर Q2 में से 0 1, तो Q2 में से 0 आता है तो हम पहुंचते हैं Q1 पे. Q2 में से 1 आता है तो Q0 पे, राइट. तो 0 आता है तो Q1 पे और Q2 में से 1 आता है तो हम पहुंचते हैं Q0 पे. तो ये बन गया मेरा ट्रांजिशन टेबल. अब दोस्तों अगर इस टेबल में मैं सिर्फ इनिशियल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट को डिफाइन कर दूं
तो ये बन गया मेरा डीएफए। मैं यहां पर अगर ये बता दूं, इफ आई यूज दिस सिंबल, लेट्स से इफ दिस इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस इज माय एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट? सो now this table contains all the information of the DFA, and I can call these as tabular representation of DFA, and these will be nothing but pictorial representation of DFA. So you may define DFA in any of these ways, whichever is convenient to you. Of course, we'll use this one only, right? This is pictorial representation of DFA, and this is nothing but tabular representation of DFA because it defines everything, right? Another thing which you must understand is this one. You concentrate on these two symbols. This is belongs to and this is subset. Now, can anyone tell me the difference between these two? Belongs to and subset. अब दोस्तों, belongs to जब हम यूज करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती है that must be single element. That must be single element. And when we use subset, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती है that can have single element or more than one element. Single or more than one. Right? Another symbol is this. Now what is the difference between these two? This is called proper subset. This is called proper subset, whereas this one is subset. ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट सिंबल है। हमने यहां पर A is subset of Q बोला है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? That either A is proper subset of Q or A is equal to Q. So there may be the case that मेरे डीएफए में जितने भी स्टेट है वो सारे के सारे एक्सेप्टिंग स्टेट हो, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? और हमने यहां पर सबसेट यूज किया, इसका मीनिंग क्या है? हमारे डीएफए में देयर मे बी वन or more than one states which are final states. Are you getting my point? We have said A is subset of Q, जिसका मीनिंग क्या होगा कि this A may contain a single state or more than one state. मतलब हमारे डीएफए में एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट भी, या तो सारे के सारे स्टेट भी एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकते हैं, जबकि हमने Q0 belongs to Q ही लिखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, मतलब इनिशियल स्टेट विल बी ओनली वन। आपके डीएफए में काफी सारे स्टेट्स हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट इनिशियल स्टेट होगा, और एक या एक से ज्यादा और या तो फिर सारे के सारे स्टेट्स एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकते हैं, विच इज डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज। ठीक है? सो आई होप दिस डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, एंड द एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो भी क्लियर है, और मैंने सारी चीजें यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझाई है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।